welcome to Personal Tutor. My name is Rashi and today we will be starting with the second chapter of class 8. This is an introduction video children जिसके अंदर हम इस chapter के सभी concepts को discuss करेंगे. After that it will be very easy for you to solve the exercise of this chapter. Alright, so the name of the chapter is Linear Equations in One Variable. Now first recall the topics that we have already done in our previous classes, like the difference between equation and expression. What is the difference between an expression and an equation? Now expression means not the facial expressions, children. Here expression is a mathematical term where we can write any form like x plus 1. X plus 1 is an expression because equal to sign is not there. If we write x plus 1 equals to 9, that means it is an equation because it has an equal to sign. So the only difference between an expression and an equation is that in an equation we have an equal to sign, but in an expression we do not have an equal to sign. 10x plus 9, this is an expression, but 10x plus 9 equals to 12, this is an equation only because this has an equal to sign. Alright, so equal to sign means it is an equation. Now the name of the chapter is linear equation. Linear equation, ठीक है? Equation है मतलब equal to का sign है. अब linear से क्या मतलब है? Linear means, for example, if I write x square plus x plus 9 equals to 17. Okay, so is this an equation? Yes, because we have an equal to sign. Is this a linear equation? No. Why? Because the power of the variable is 2. Linear means the power of variable should be 1. Like here, the power of variable is 1. Okay? Here also the power of variable is 1, but here the power of variable is 2. So this is not acceptable. ये नहीं चलेगा. मतलब one linear equation means power 1 होनी चाहिए variable की. ठीक है? Like for example 10x plus 15 equals to 30. So this is a linear equation. Equation है because equal to का sign है. एंड लीनियर है बिकॉज x की पावर 1 है. ये इक्वेशन तो है बट इट इज नॉट लीनियर बिकॉज x की पावर 2 है. सो दिस विल नॉट वर्क. दिस विल वर्क. लीनियर इक्वेशन मीन्स वेरिएबल की पावर शुड बी 1 एंड इक्वल टू साइन शुड बी देयर. ऑलराइट, सो लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ में आता है. नाउ इन वन वेरिएबल, अब वन वेरिएबल का क्या मतलब है? लेट्स सी. अभी तक हमने क्या किया पहले उसको डिस्कस करते हैं. डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन. इन दिस चैप्टर वी विल गेट इक्वेशंस नॉट एक्सप्रेशंस. इक्वेशन भी लीनियर कैसे होती है वो हमने डिस्कस किया. लीनियर मींस पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 एंड जस्ट 1. ओके, नाउ इन वन वेरिएबल इफ आई राइट 10x plus 5y gives us 15z. तो दिस इज नॉट इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये वन वेरिएबल में नहीं है बिकॉज इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए x, y एंड z. बट हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात करेंगे इस चैप्टर में. दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि x जो है या फिर y जो है वो एक ही बार आएगा. जैसे इधर एक ही बार आ रहा है, इसमें भी एक ही बार आ रहा है. वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 10x plus 5 gives us 15x plus 20. This is also linear equation in one variable. Linear equation भी है क्योंकि equal to का sign है. Linear भी है because x की पावर 1 है and one variable में भी है, x में ही है, y z तो नहीं है, कोई और variable तो नहीं है. So this will not work but this will work. x 2 बार तो आ सकता है
बस उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस। सॉल्विंग इक्वेशंस, and that also variable on one side. Our first part is variable on one side. Children, we have two methods to solve an equation. Okay, but basically in our chapter we will stand on our second method, that is transposing. But first method भी मैं आपको introduce करा देती हूँ. Okay, so our equation is 2x minus 3 gives us 7. This is our equation. This is an equation because equal to sign is there. So इस equation को हमें करना है solve, and solve करना है for the value of x. एक ही variable है, उसी की value निकलेगी. Solve for the value of x. अब बच्चों, जो ये वाला मेथड है इसमें हमें x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से एक एक करके इन नंबर्स को एलिमिनेट करना है ताकि सिर्फ x बच जाए और x की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है उसको पहले नहीं छेड़ेंगे, पहले वी विल सी दी जो सेपरेट में नंबर है ना 3, उसको देखेंगे। अब ये है -3, अब -3 को हमें करना है एलिमिनेट। -3 एलिमिनेट कब होगा? जब हम -3 को +3 और लिख देंगे उसके आगे, तो -3 और +3 कट के हो जाएगा 0 हो जाएगा। एलिमिनेट, -3 को एलिमिनेट करना है, बट हम इक्वेशन के एक ही साइड पे भी कभी भी +3 ऐसी तो कर नहीं देंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है दैट हमें बोथ साइड्स पे +3 करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ओके, तो अब इधर -3 ऑलरेडी है, इट मीन्स हमें करना है +3 ऑन बोथ साइड्स। सो ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। So 2x minus 3 plus 3 gives us 7 plus 3. दोनों साइड हमने 3 ऐड कर दिया। अब ये तो एलिमिनेट हो गया, इधर बचा 2x and this is 7 plus 3 is 10. तो अब हमारे पास आ गया 2x equals to 10. ऑलराइट, अब हमें 2 को एलिमिनेट करना है। अब 2 है मल्टीप्लिकेशन में, अब 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में है और उसको एलिमिनेट करना है, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा 2. इट मीन्स दैट हियर वी हैव टू डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ये भी डिवाइड भी बोथ साइड्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम वन साइड पे डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। जो भी हम करेंगे बोथ साइड्स पे करेंगे। ओके, अब इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं अगर हम, सो हियर आल्सो वी विल डिवाइड 10 by 2. नाउ 2 से 2 कट हो गया तो ये बच गया x। अब x की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज हमने 3 भी एलिमिनेट कर दिया, 2 भी एलिमिनेट कर दिया। सो x की वैल्यू आ गई 2 5 10. सो वैल्यू ऑफ x इज 5. Got it? But this method doesn't work in our exercises. Easily नहीं बच्चे क्लिक कर पाते, बट अब जो मैं मेथड कराऊंगी ट्रांसपोजिंग, वो मेथड इजीली हो जाता है और बहुत इजी रहता है करने में। अब हम करते हैं ट्रांसपोजिंग। लेट्स टेक द सेम इक्वेशन, 2x minus 3 gives us 7. Now ट्रांसपोजिंग मीन्स हम नंबर्स को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करें। ठीक है, अब वो कैसे कर देंगे? ऐसे तो हो ही नहीं जाएगा कि -3 इधर है, इसको इधर ले गए -3 लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। हमारे पास ट्रांसपोजिंग के कुछ रूल्स होते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर हमारे पास एक नंबर है,
इधर अगर हमारे पास -3 है तो वो राइट साइड पे जाके हो जाता है +3। ओके, जब हमारे नंबर्स ट्रांसपोज होंगे उनके साइन चेंज होंगे, ठीक है। जैसे दिस इज -3, सो जब ये इधर जाएगा ये इट विल बिकम +3। ओके, अब जैसे इधर है 2x, ठीक है, जब 2 उधर जाएगा इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड हो रहा है, इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो रहा है, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो रहा है, इधर डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि प्लस है तो माइनस हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हो रहा है और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आया समझ में? अब इधर -3 को हम पहले हटाएंगे यहाँ से, बिकॉज -3 इंडिविजुअल टर्म है, ठीक है। अब -3 है माइनस में, तो अब इधर जाके ये हो जाएगा +3, तो 2x = 7 एज इट इज लिखा मैंने, बस -3 को इधर ना लिख के इधर जाके आई रोट +3। ओके, ठीक है, तो ये हो गया 2x gives us 7 + 3 is 10, so 2x gives us 10, ठीक है। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें x के साथ जो 2 है उसको भी एलिमिनेट करना है, अब वो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x = 10 एज इट इज लिखोगे पहले पूरी इक्वेशन, देन उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 2 5 = 10 होता है, तो x gives us 5, so value of x is 5। बेसिकली हमने ट्रांसपोज किया तो बस हमने साइन चेंज किए, माइनस था तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई, प्लस में है तो माइनस। ओके, सो दिस वाज वेरिएबल ऑन वन साइड। अगर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करनी हो और वेरिएबल एक ही साइड पे हो तो हम ऐसे करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द वेरिएबल इज ऑन both sides, okay, that we will discuss in our next video. All right, so thank you and stay tuned, and if you have any doubt you can ask in the comment section below. Thank you.